माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई अप्रोच के साथ युवाओं में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आप ऐसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस में से हैं जिन्हें बेस्ट यंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड तथा 2019 में संसद रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। माननीय, हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इन युवाओं को हम सबको संबोधित करें और हम सबको प्रेरणा दें। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। Honorable Speaker Lok Sabha, respected Shri Om Birla ji, Minister of State for Youth Affairs and Sports, Shri Nisit Pramanik ji, my colleague in the Lok Sabha and a very dear friend, Shri Manoj Tiwari ji, Secretary Youth Affairs, Shrimati Meeta Rajiv Lochan ji, Secretary Sports, Shrimati Sujata Chaturvedi ji, officials and friends who have gathered here from the various parts of the country. Let me first welcome you all and congratulate you to be amongst those talented youth who have been selected from across the country. Seeing all of you youngsters assembled here gives me a lot of hope for our present and the country's future. Honorable Prime Minister Modi, in his Mann Ki Baat addressed on 31st December 2017, had extensively spoken about giving a chance to the youth to put forth their views on various issues concerning the country. And I take great pride that in fact that the Ministry of Youth Affairs and Sports have left no stone unturned to realize Prime Minister Modi's vision. And let me also thank the Honorable Speaker for helping us to realize this dream. As we conceptualize the first edition of the National Youth Parliament Festival in the year 2019, which was organized with the theme, Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to Policy. More than 80,000 youngsters participated in the physical mode. The second edition of the National Youth Parliament Festival 2021 was organized with the theme Yuva, Utsah Naye Bharat Ka, which was witnessed by more than 23 lakh youth and stakeholders across the country in the virtual mode during the COVID-19 pandemic. And the third edition of the National Youth Parliament Festival 2022 was organized with the theme Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to the Policy, with participation of more than 2.44 lakh youth from across the country. This year, the fourth edition of the National Youth Parliament Festival 2023 was launched with the theme Ideas for a Better Tomorrow, India for the World. You all would be glad to know that the district youth parliaments were conducted in January 2023. Over 2 lakh youth from more than 748 districts of all states and union territories participated at 150 venues across the country. अब 2 लाख युवाओं ने तो भागीदारी की, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी 2 लाख युवाओं में से जो 85 चुनकर हम सबके बीच में आए हैं, मैं एक बार आपकी और अपनी ओर से इन सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। मैं जहाँ इस मंच के दोनों ओर देख रहा हूँ कि दोनों सचिव भारत सरकार की महिला हैं और वहीं पर 85 में से पार्टिसिपेंट भी 61 भारत की बेटियां हैं। सो मेरे युवा साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम देश के किसी कोने में जाएं और एक राज्य की बात नहीं, हम देखते हैं कि किसी भी कॉलेज स्कूल का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो या खेलों का ही फंक्शन क्यों ना हो, वहाँ पर भारत की बेटियां 10 में से 7 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के रूप में सबसे आगे आती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत में बेटियां कैसे आगे बढ़ रही हैं
मोदी जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने उससे भी आगे बढ़ने का काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक उदाहरण माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पिछले साल जब हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ तो उसमें से 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया। और इस बार जब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तब 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 19 से ज़्यादा बेटियों ने तोड़ने का काम किया। अब इसी तरह से रिकॉर्ड कुछ भारत ने भी तोड़े हैं। 2014 से पहले भारत की छवि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज की थी, और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में फ्रॉम फ्रेजाइल 5 वी हैव बिकम फर्स्ट 5 अमंग द फर्स्ट 5 इकोनॉमीज। और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो काम कैसे देश बदलता है 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा है। कहाँ एक समय था 2013-14 तक पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे, आज पॉलिसी रिफॉर्म्स के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही नहीं मेरे युवा साथियों, जब दुनिया के सामने आपदा आई, हम सब लोग लॉकडाउन में बंद थे, एक और मोदी जी की सरकार में नीति निर्माण हो रहा था, पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने का काम हो रहा था। नीचे आम जनमानस को सुविधाएं देने के लिए हमारे वॉलंटियर्स जो थे, यूथ वॉलंटियर्स, वो देश भर में सर लाखों नहीं करोड़ों हमारे युवाओं ने देश में अनाज बांटने का काम, कोविन ऐप के बारे में जानकारी, आरोग्य सेतु ऐप, ये सब करने का काम युवाओं ने किया। तो वहीं पर भारत ने अपनी 2 वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन देश में मुफ्त लगाई और दुनिया के 150 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम किया, और अपने पड़ोसी देशों को 30% दवाई, अपनी कुल दवाई का भी देने का काम, यानी कि पड़ोसियों की जान भी बचाई, और दुनिया भर में भी भारत ने एक नई ऊंचाई पाने का काम किया है। आज जहां लोग कहते थे कि भारत में लाखों लोग मर जाएंगे, इतनी मृत्यु हो जाएगी भूखमरी से, महामारी से, हम सीना ठोक कर कह सकते हैं ना भूखमरी से मरने दिया, क्योंकि 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया, मुफ्त में दवाई से लेकर वैक्सीन लगवाने का काम किया, और अर्थव्यवस्था को भी चरमराने नहीं दिया। हमने दुनिया भर के 162 देशों से 61 सेक्टर में भारत में 31 राज्यों में रिकॉर्ड FDI लाने का काम भी किया है, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। अर्थव्यवस्था तो बनी, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में हमारे युवाओं ने क्या शानदार काम किया। आप स्टार्टअप नेशंस देखिए, आज से 7-8 साल पहले भारत का नाम कहीं नहीं आता था। केवल एक पॉलिसी में बदलाव करके प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ाने का काम किया, और युवाओं ने अपनी ताकत को दिखाया है। मात्र 8 वर्षों में भारत को आज दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशन में लाकर हमारे युवाओं ने खड़ा कर दिया है। मेरे साथियों, 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आज भारत में हैं, 107 यूनिकॉर्न भारत में है, यानी कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में हैं। दुनिया में रोज नए सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में बन रहे हैं, और 3rd लार्जेस्ट हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में आकर खड़े हुए हैं। UPI का नाम सुना है किसने? UPI भीम। मैं UPA की सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं UPI भीम की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म फिनटेक का जहाँ पेमेंट ट्रांसफर्स के लिए बहुत बड़ी शुरुआत हुई। लोग हंसते थे 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जनधन खाते खोले हैं, तो मुझे याद है प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से अभी भाषण देके ख़त्म नहीं किए, मीडिया में आलोचना होनी शुरू हो गई, अरे इतने बड़े देश में कहाँ खाते खुलेंगे, क्यों गरीब का खाता खोलेंगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, it speaks how we brought in more transparency and accountability into the system, how delivery mechanism has become more better, how last mile delivery has been ensured, and today we can say what in the earlier regimes Rajiv Gandhi ji used to say कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ 15 रुपया नीचे पहुँचता है, 85 रुपया कौन खाता था। आज हम कहते हैं हम 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही खाते में पहुँचता है।
खाने वालों को खत्म कर दे। अब ये बदलाव देश में आए हैं। मैं इसलिए सब बातों को कह रहा हूं क्योंकि आप वर्तमान भी है और भविष्य को बनाने वाले भी आप हैं। यू आर बनाने वाले भी आप हैं। यू आर द प्रेजेंट एंड यू विल बी बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एज वेल. So let me remind you, do whatever you want to do in life, but contribute towards the nation building process. You are being the largest stakeholder and you have to play the most important role in the nation building. As the India is building a lot of Fortune 500 companies, at the same time, this digitization and data revolution, which has enhanced the efficiency of delivery of public service, transparency, and most importantly, the citizens' trust. आपदा के समय 20 करोड़ महिलाओं के खाते में एक बटन दबाकर 31,000 करोड़ रुपए की मदद मोदी जी ने पहुंचा दी. कोई जाना नहीं पड़ा, सीधा खाते में पैसा आया. अभी 3 दिन पहले 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपया डाला केवल एक बटन दबाकर. आज इंश्योर किया है कि हमारा ये सिस्टम काम करे. दूसरा, हमारी सॉफ्ट पावर, योग हो, आयुष हो, होम्योपैथी यानी आयुष में मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब को लेकर भी आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ के चैलेंज देखने को मिलते हैं कि लोग स्ट्रेस के कारण, लेकिन भारत में आज भी उसकी बात करें तो लोग सोचते हैं अच्छा मेंटल हेल्थ की बात करनी है, थोड़ा उसको नेगेटिव लिया जाता है. लेकिन इसकी चर्चा को हमें और आगे बढ़ाना है. आज मैं देखता हूँ दुनिया भर के लोग भारत की ओर चले हैं योग सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब के लिए. ये हमारी ताकत है, हमें भी अपनाना है और दुनिया तक भी पहुँचाना है. और ये ग्लोबल लाइफस्टाइल गोल जो वेस्ट में है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है. यही नहीं, एनवायरनमेंट को लेके भारत सजग तो है ही, सुधार करने का काम भी किया है. जब दुनिया के बड़े बड़े देश क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मान पाए, ना निभा पाए और COP21 में भी वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आए, तब भारत के नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में नेतृत्व देने का काम किया. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत में बना भी, दुनिया भर के देशों को जोड़कर हेडक्वार्टर भी भारत में बना है. और COP26 में भी भारत ने ही सबसे आगे बढ़कर कहा, जब मिशन लाइफ की बात की, लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में जागरूकता फैलाने की बात की, तब जाके लोगों ने उसको अपनाया. हमने जो टारगेट 2030 के रखे थे रिन्यूएबल एनर्जी के, वो भी हमने उससे पहले पूरा करने का काम किया है. कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर भारत पीछे रहा हो. मिशन दोस्त, एक समय था, देखिए, भारत मदद मांगने वालों में से था. आज भारत, चाहे नेपाल में अर्थक्वेक आया, चाहे लीबिया, सीरिया में अरब स्प्रिंग के बाद वहाँ पे मुसीबतें आई, या अफगानिस्तान में मुसीबत आई, टर्की, सीरिया में अब अर्थक्वेक आया, अब भारत वो भारत नहीं रहा. अब भारत मदद देने वाला बना है, मदद लेने वाला नहीं बना है. And if there is crisis anywhere in the world, India has become the first responder. That is the image we have created today. और इस 7-8 सालों में बदला है. आपको तो अपना जीवन अगला पूरा जीना है देश के लिए. मैं इसलिए कहता हूं कि 8 साल में कैसे इतने बड़े देश में बदलाव लाया जा सकता है. इतने बड़े देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा लाल किले की प्राचीर से? युवाओं को 5 प्रण देने की बात कही, 5 रिजॉल्व्स की बात कही. पहला, हमें भारत को विकसित भारत बनाना है. दूसरा, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, अपनी कला, संस्कृति, साहित्य को और बढ़ाने का काम करना है. और इसका उदाहरण सबसे बड़ा है, सोमनाथ धाम बनाई, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक को बनाया और बौद्ध सर्किट बनाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे को पहुंचाया, करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया. साथ ही साथ अब अगले साल भव्य राम मंदिर और अयोध्या धाम बनाकर भी आपको देने का काम कर दिया जाएगा. अब ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, इसके साथ आधारभूत ढांचा जोड़ के अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बनाए. द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इफ यू लुक एट अराउंड दैट, it has created more jobs and self-employment opportunities for a lot of people there. इस तरह से हमने कैसे कैसे बदलाव किए हैं. तो दूसरा, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना. तीसरा, गुलामी की सोच से मानसिकता पाना. आज भी इस देश में कुछ लोग हैं गुलामी की सोच के साथ ही जी रहे हैं. वैसे देश आगे नहीं बढ़ सकता. हमारा देश आज़ाद हो चुका है और जिन महानुभावों के आप चित्र इस यहाँ पर या पूरे प्रांगण में देखेंगे,
उन लोगों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन दे दिया है। हमें आज़ाद भारत मिला है, हमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, आपको योगदान देने का समय आया है, योगदान देकर आगे लेके जाने का। चौथा, देश को एकता एकजुटता बनाए रखना। अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न बोलियां हैं, हमें सबको एकजुट रख के भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कल्पना को लेके आगे जाना है। और पांचवा, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डेडिकेटेड एंड रेडी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट साइड। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री जी अमृतकाल की बात करते हैं तो इस बार के बजट में आपने वो उम्मीद देखी होगी, वो होप दिखा होगा कि इस बजट के माध्यम से कैसे भविष्य का भारत हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो पिछली बार से 33% ज़्यादा है, यानी कि आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा और रोजगार खड़े होंगे। रेलवे में 2014 के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा बजट किया गया, 2,40,000 करोड़ रुपए का। आवास सबको मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि है, 79,000 करोड़ रुपीस की। युवाओं को, एमएसएमई को और पैसा मिले, 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से मिलेगा। अब ये सब उस दिशा में है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत का 5वें नंबर की इकॉनमी से सीधा 3रे नंबर की इकॉनमी की ओर लेकर जाने का काम करेंगे। और इस बार के बजट में वो उम्मीद, वो होप दिखती है कि हमारा भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये कोविड-19 से पहले भी पहले नंबर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली थी और आने वाले कई वर्षों तक रहेगी। इस बात को भी सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे। मित्रों, हमने इनोवेशन में भी 81वें नंबर से 40वें नंबर तक पहुंचने का काम किया है। और हमारे जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब मैं कहता हूं कि 45 करोड़ बैंक खाते खोले, 11 करोड़ लोगों को हमने देश भर में 11 करोड़ घरों को अगर जाके देखें तो नल से जल देने का काम किया है। 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। जब हम इन बातों को सब जगह जाकर करते हैं कि 3.5 करोड़ पक्के मकान हमने बनाकर दे दिए, तो इसी हॉल में या इस संसद में जब बाहर के लोगों को आते हैं, जो माननीय अध्यक्ष जी, जब अलग अलग देशों के सांसद, वहाँ के अध्यक्ष, उन सबको बुलाते हैं, जब आंकड़े उनके सामने रखे जाते, 45 करोड़ बैंक खाते 2 साल में खोले, 9.5 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर देते, तो उनको अपने आप में बहुत अलग लगता है कि कैसे संभव हो सकता है। लेकिन भारत में असंभव को संभव करने का काम ये भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसीलिए जब अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा की हम बात करते हैं तो असंभव को संभव करने का काम आपको भी करना है। अपना करियर तो देखना है, साथ ही साथ कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां आप बदलाव देखना चाहते हैं, आप अपना कमिटमेंट कीजिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पानी हो, पर्यावरण हो, जहां पे आपको लगता है कि आपका योगदान अगले 25 वर्षों तक होना चाहिए। लेट अस लिव एंड ब्रीथ एवरी मोमेंट, वो करना चाहिए। हमें एक एक सांस इस देश के लिए प्रति समर्पित हो कि हम उस क्षेत्र में बदलाव लाएंगे और उस बदलाव का कारण हम बनेंगे। हम भारत को अमृतकाल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने में अपना पूरा योगदान देंगे। और हम तब कहते हैं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला था डिफेंस इक्विपमेंट का। आज 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट भारत में बनते हैं और भारत 16,000 करोड़ का निर्यात, एक्सपोर्ट 75 देशों को करता है और अगले 2 सालों में 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कर लेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमें माननीय स्पीकर महोदय को सुनना है, लेकिन अध्यक्ष जी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। ये चौथा ही एडिशन हो सकता है, लेकिन जो अनुभव यहाँ से प्राप्त हुआ है, इस देश के कोने कोने में इतना हुनर है। ये केवल पढ़े लिखे युवा विद्वान नहीं है, ये जिस प्रभावशाली ढंग से अपना भाषण रखते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी इनके भाषण को ट्वीट करते हैं और इनको भी अपने यहाँ चाय या भोजन पे बुलाते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक शुरुआत और इनका मनोबल बढ़ाने का काम वहाँ से भी हुआ है। आपने इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। युवा साथियों,
इस हॉल को बहुत अच्छे ढंग से देख लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कोई बता सकता है? मैं स्पीकर महोदय से बैठा बैठा वही बात कर रहा था कि जहां फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई हो और 75 साल तक देश की लोकसभा राज्यसभा का बीच में सेंट्रल हॉल, अब प्रधानमंत्री जी और लोकसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर महोदय ये देश को नई संसद देने वाले हैं। लेकिन मेरे जैसे एमपी जो 4 बार लोकसभा का सांसद बन के बहुत सारा समय यहाँ पे बिताया हो, और आप जैसे युवा जिनका शायद ये आखिरी बैच होगा जिसको यहाँ पर प्रोग्राम करने का अवसर मिल रहा है, अगली बार से हमारी नई पार्लियामेंट भी बन जाएगी, तो आप वो भाग्यशाली भी हैं जब इस संसद का ये सेशन अगली बार से कभी भविष्य में दूसरे नए सदन में होगा तो एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और माननीय स्पीकर महोदय का अपना कीमती समय निकालकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर डिपार्टमेंट की ओर से, सरकार की ओर से करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।